So last I suppose I explained what is average acceleration, right? So average acceleration is what? Final velocity minus initial velocity upon t2 minus t1, right? Then uh, this is again written as delta v by delta t in form of components. I could write this as v1 v2x vector minus so v2xi plus v2yj minus v1xi plus v1yj upon delta t. I can distribute this as v2x minus v1x. So delta vx, change in x component of velocity upon time taken, change in y component of velocity upon time taken. This was ax and this was ay. So average acceleration is x component of acceleration into I plus y component of acceleration into I. So average acceleration also can have components, right? X and y components. So these are different symbols you'll see in your textbook. Okay, is it clear? Now, instantaneous acceleration. Now you can hear me, na? Yeah, sir. Okay. Now, instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration is acceleration at a particular instant or moment of time. So how do we write that? So will look similar, but with a condition. What is that condition? Limit delta t tends to 0, delta v vector by delta t. I'll repeat. Acceleration is limit delta t tends to 0, delta v vector by delta t. This is dv by dt. This is dv by dt. So acceleration at any instant is dv by dt, right? Now, velocity in terms of I and j we can write as vxi plus v by j. So d by dt of vxi plus d by dt of vy into j. This is ax. So axi plus ay j. This is again acceleration. So ax is x component of acceleration and ay is y component of acceleration. Is it clear? Yes, sir. Same as average acceleration ही है ना फिर like equation. क्या 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 नहीं समझा क्या बोल रहे? दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम ही लग यहाँ पे टाइम इंटरवल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, मतलब वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात है. यहाँ टाइम इंटरवल फाइनाइट है. दोनों में बहुत फर्क है. क्वेश्चन में अलग से लिख के आता है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. अगर मैंने पूछा आपसे फाइंड एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड्स, तो आई एम आस्किंग एवरेज एक्सेलरेशन. अगर मैंने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, तो at t equals to 5 seconds बोला तो it is instantaneous acceleration, and we have seen average value is different from instantaneous value. Hello. Yes sir. हाँ, तो दोनों अलग है, मिक्सअप मत करना है. चलो, तो ये हो गया ना. एक छोटा क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करता हूँ इसके ऊपर. एवरेज, इंस्टेंटेनियस सारी चीजें इसमें ले लेना. एंड उसके बाद एक नया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्सेलरेशन सिखाता हूं. सपोज दिस क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर इज t square I plus t cube j. Position vector of a particle is given by formula t square I plus t cube j. Right? Now question is, पहला सारी चीजें इसमें कवर करते हैं. Find position at t equals to 4 seconds and 0 second, 2 seconds and 3 seconds. Then
displacement in 0 to 2 seconds and 2 seconds to 3 seconds. Then velocity in 0 to 2 seconds and velocity at t is equal to 2 seconds. Then acceleration. Acceleration in interval 0 second to 2 seconds. And acceleration at t is equal to 2 seconds. Then component of acceleration at t is equal to 3 seconds. So, do it. So position at t equals to 0 seconds, t is equal to 2 seconds and t is equal to 3 seconds. Say, क्या क्या है position? पहले 0 0 पे सेकंड origin. 2 सेकंड पहले origin. At t is equal to 0 seconds is origin. So 4i At t is equal to 2 seconds is 8j cap 4i plus 8j cap. 4i plus 927. 9i plus 27. T is equal to 3 seconds per 9i plus 27j. Now displacement in 0 to 2 seconds. Delta r vector in 0 second to 2 seconds. 4i cap plus 8j cap 4i cap plus 8j cap. Displacement in 2 seconds to 3 seconds. 5k plus 19jk. 5i cap 5i 19. Now, velocity in 0 to 2 seconds. Velocity in 0 to 2 seconds. 2i cap plus 4j cap 2i cap plus 4j cap. कैसे निकाला? See, average velocity is what I'm talking about. So average velocity is net displacement upon time taken. So what is net displacement? Net displacement is 4i plus 8j. And what is time taken? Time taken is 2 seconds. So divide by 2. So 2i plus 4j. What is velocity at t equals to 2 seconds? Velocity at t equals to 2 seconds. Anyone? Instantaneous velocity की बात हो रही है? और इसमें We're talking about it. differentiation लगेगा ना Differentiation is to be used. सर वो dr नहीं by समझ आ रहा सर कैसे करना है 16. 16 नहीं आएगा बेटा, कुछ तो गलत करें. See, velocity at any instant, instantaneous velocity is what I'm looking for. So that is dr by dt. Right? Differentiate this expression. So differentiation you have studied a little of it now. yes Okay, then you should understand. So I t square, I is constant. So t square का differentiation is 2t plus 2ti 3t square plus 3t square j. Now at t equals to 2 seconds I've asked. So velocity is 2 2s are 4i plus 4i 2 plus Yes. 12jk. ओ plus समझा 12 सर Okay, so 4i plus 12j. So velocity at t equals to 2 seconds is 4i plus 2j cap. 4i cap plus 2j. All right. yes Now, sir acceleration in 0 seconds to 2 seconds. Let's see, ये कौन बताता है? Try करो. 2i plus 6jk. 2i plus 6j cap.
सीधा आंसर होता है 2, 0 पे 0 था, यहाँ पे 4 प्लस 12 कितना हो गया, हाँ करेक्ट, 2i प्लस 6 जगह। सो कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन, so that is final velocity minus initial velocity upon time taken. So what is velocity at t equals to 2 seconds? Already determine करके रखा है 4i plus 12j. So final velocity is 4i plus 12j minus v1. v1 vector is initial velocity 0. 2 minus 0. So 2 true cut 2i plus 6j. अच्छा अच्छा. So average acceleration is 2i plus 6j. चिन्मयी अभी वही डाउट क्लियर होने वाला है. हाँ सर समझा. So 2i plus 6j. Now acceleration at t equals to 2 seconds. सर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया हुआ इक्वेशन है उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे. Velocity को differentiate करना है. So acceleration is dv by dt. The d by dt of 2ti plus 3t square j. So 2i plus 6tj. So dv by dt is 2i plus 6tj. 12J. Second differentiation. So at t equals to 2 seconds, acceleration is 2i plus 12j. अच्छा अच्छा. The component of acceleration at t equals to 3 seconds. Components बताने आपको, x and y components. So it is ax and what is ay? 2i plus 18j. 2i plus 18j. So 2 and 18 as the answer. तो component पूछे मैंने आपसे सिर्फ, तो acceleration का x component is 2 and y component is 18. So answer is 2 and 18. 2 meter per second square and 18 meter per second square. Clear? यस सर. Yes, sir. तो ये हो गया क्वेश्चन. बाकी लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा. आ रहा है सर. काव्या, काव्या, सतीश, आ रहा है ना? यस सर. उत्कर्ष, ना से एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग. एक्सेलरेशन से बाकी चीजें निकालेंगे, कुछ चीजें निकालते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. X component of acceleration is minus 2 meter per second square, whereas Y component of velocity is 3 meter per second. If t is equal to 0, 1 second.
Sir, after xy component, what you have wrote? And had x and y component of velocity equal, find velocity and position at t equals to 3 seconds. Question is, x component of acceleration is minus 2 meter per second square, y component of acceleration is, y component of velocity is 3 meter per second. ऐसा कुछ लिखा है मैंने, अभी आपको उसका एनालिसिस खुद करना है क्या लिखा हुआ. At t equals to 0, particle is at 3 minus 2 and had x and y component of velocity equal. So find velocity and position at t equals to 3 seconds. I'll give you 5 minutes. सोचो अच्छे से क्या लिखा हुआ है. फिर एक चीज जो दी हुई है उससे बाकी चीजें निकालनी है. किसी को कोई छोटा डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं इन बिटवीन. सर ये जो आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दिया है वो इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? इंस्टेंटेनियस है. बहुत अच्छा डाउट पूछा चिन्मय ने. सी हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज इंस्टेंटेनियस और एवरेज. तो पहली चीज तो देखो, इसमें कोई इंटरवल की बात तो कही नहीं मैंने. पहली चीज तो एवरेज वाली तो लगी नहीं ना. अगर एवरेज की बात होती है तो टाइम इंटरवल इज फाइनाइट. तो यहाँ पे कोई फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात तो हो ही नहीं रही ना. फर्स्ट थिंग. Second thing is, in mechanics, by default, all the quantities are instantaneous. By default, अगर किसी ने बोला है भाई क्या है, कुछ दिया ही नहीं है, तो it is instantaneous. Average होगा तो लिखा होगा कि ये average है. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो remember it is instantaneous. आपको अगर शुरू करने में मुश्किल लग रहा है तो मैं -2 मीटर पर सेकंड से वगैरह मतलब बोल सकता हूँ. कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे कि अब शायद ये डाउट यहाँ से भी चिन्मय का आया होगा कि यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, उसमें -2t लिखा होता तो लगता था कि इंस्टेंटेनियस है. सिर्फ -2 लिखा हुआ तो ये फिर कैसे इंस्टेंटेनियस हुआ? सिर्फ -2 लिखा हुआ है मतलब हर इंस्टेंट ही -2 है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. दैट्स व्हेन आई से ax is -2 meter per second square, so definitely I'm talking about instantaneous acceleration. But you don't see time there, that means it is constant. X component of acceleration is always constant. ओके सर. ट्राई करो. सर नहीं समझ आ रहा. सर ax कंपोनेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और vy मीटर पर सेकंड में.
ये कैसे सर? एक बार फिर से बोलो तो क्या बोलो? सर ax कंपोनेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और एक एक्सेलरेशन दूसरा वेलोसिटी है। वो तो v है ना बेटा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड में। हाँ तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में आएगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा सर। ओके चलो, आई विल एक्सप्लेन नाउ। आया किसी को? नहीं आया? नहीं नहीं सर। सी एक्चुअली बहुत आराम से आपको सोचना ना मिल जाता था। एक्स कंपोनेंट है मोशन का अलग से सोचने के लिए, वाई कंपोनेंट यू हैव टू थिंक सेपरेटली। एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? -2 -2. meter per second. Correct. How do we get velocity from acceleration? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। नहीं, वो एवरेज के लिए होता है और वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। इंटीग्रेशन, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगा। Right? Let's recall, we have studied in motion in straight line. Differentiate velocity, we get acceleration, right? याद है? X component, sorry, position का x coordinate, मतलब x coordinate को differentiate करोगे, velocity along x आएगा. Velocity along x को differentiate करोगे तो acceleration along x आएगा. Integrate acceleration with respect to time, you will get velocity. Velocity को integrate करो, you will get position, right? So Vx, how to get Vx? Integrate 2t होगा नहीं -2t plus a constant. कौन -2t, हाँ constant इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा एक constant ऑफ इंटीग्रेशन लगता है। यस सर। वहां पे हम रुक गए, कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं क्यों। at t equals to 0 particle is at this and x and y component of velocity are equal. तो y component velocity का कितना है? वो तो कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकंड है। y component of velocity is constant, is independent of time, नहीं? सर आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो? एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स लेके। x and y component of velocity are equal at t equals to 0 second, ठीक है? हाँ सर। ओके, y component of velocity तो कांस्टेंट दिया हुआ, हमेशा ही 3 रहेगा। y component of velocity is independent of time, so it's always constant and it is 3 meter per second, right? तो आंसर 5 है क्या कांस्टेंट Vx में? तो k का वैल्यू नहीं, at t equals to 0 Vx is k but it should be equal to 3, मतलब k का वैल्यू 3। What? 0 seconds की बात है ना, तो at t equals to 0 x component of velocity is k but it should be equal to 3, तो k का वैल्यू 3, so k का वैल्यू 3 हो गया। I'll explain again. बस x कंपोनेंट ही बढ़ रहा है। हाँ, y component तो constant दिया हुआ ना, 3 meter per second, so it's only x component which is varying, right? अरे 4 बार समझाऊंगा बेटा, मेरा काम ऐसी है। तो Vx is equal to -2t plus 3। अब यहाँ से आप x निकालो, अब जिनको नहीं समझा वो वापस देखो। See, motion in 2 dimension बहुत इजी है if you are good in motion in 1 dimension। तो हमने मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा टाइम में पढ़ा। हाँ, उस दिन आपने बोला था कि मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन अगर अच्छे से आता तो 1 डायमेंशन इजी हो जाता है। देखो बेटा, दोनों म्यूचुअली लोग पढ़ सकते हैं। कई लोग सीधा 2 डायमेंशन पढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसी बुक्स देखी हैं, वो भी फॉरेन ऑथर, अच्छे ऑथर्स की, जो सीधा मोशन स्टार्ट करते हैं और वो बताते हैं कि 1 डायमेंशन इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस, राइट?
बट एक हैबिट डेवलप हो चुकी है हमारी, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन इतना डिटेल में पढ़ा होता है कि इट बिकम्स इजी फॉर अस टू स्टडी मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग मोशन इन 1D। आपके सिलेबस में जितनी भी थ्योरीज एक्सप्लेन की है ना, जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे ना 2 डायमेंशन के, वो कैसे बोले होंगे? एक्स को अलग से देखो, वाई को अलग से देखो। दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों को अलग अलग स्टडी करो, बाद में क्लब कर लो। तो दोनों तरीके से लोग पढ़ रहे हैं ना। कुछ बुक्स में आपको बताता हूँ, उसमें उन्होंने मोशन इन 2 डायमेंशन ही सीधा सिखाया, मतलब इन जनरल मोशन सिखाया, फिर उसमें बताया कि इसका एक स्पेशल केस होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। एनीवेज, आपको जो बोल रहा हूँ वो पुरानी बात मत पकड़ो, आप इधर पे ध्यान दो। तो एक्स कंपोनेंट मोशन का अलग से देखो। आप एक्स एक्सिस के अलावा क्या क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता, सिर्फ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, राइट? तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेलो जी सर। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक्स कंपोनेंट के लिए यू विल इंटीग्रेट इट, तो -2 तो कांस्टेंट है, -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2t प्लस अ कांस्टेंट, तो -2t प्लस के आ गया। सर लेकिन वो तो सिर्फ -2 था ना, तो -2t कैसे होगा? बट -2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, हाँ अंदर 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 मतलब t⁻0, सो t⁻0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो -2 कांस्टेंट बाहर था, तो -2t हो गया। सर तो फिर प्लस के। हाँ, प्लस एक कांस्टेंट आएगा। रीजन, इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट है। कैसे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होना चाहिए। ये मतलब कोई आपको पूछे ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्चुअली वो आपसे बोल रहा है, मन में सोचो किसका डिफरेंशिएशन एक्स है। मुझे मालूम है x²/2 का डिफरेंशिएशन x है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2। इट वर्क्स लाइक दैट। इंटीग्रेशन इज x dx का मतलब है इंटीग्रेशन x⁻²/2 है, ठीक है? सॉरी, मैं क्या बता रहा था? हाँ, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज 2x। x डिफरेंशिएशन? 2x। x² + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। सर 3 0 हो जाएगा। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 100 2x। 2x। हाँ सर, समझा क्यों समझा। लगाते हैं कॉन्सेप्ट? हाँ, so इस हिसाब से अगर मैं, हाँ वेरी गुड, 2x का इंटीग्रेशन देखने जाऊं तो इधर से देखूं तो x² है, इधर से देखूं तो क्या दिखेगा? x² + 3 है। इधर से देखने जाऊंगा तो 2x का इंटीग्रेशन मुझे x² + 100 दिखेगा। तो है क्या? तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगा के छोड़ देते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से कुछ हो सकता है। We assume that there was a constant in the function which due to differentiation